Hello dear students, welcome back to our channel. So today we are going to understand about the next session, that is reproductive health. But before beginning with our topic, I would like to remind you that if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's begin. Alright, so let's start with our today's session, that is reproductive health. In our earlier session, we had talked about what is parturition, what is lactation, okay? We tried to understand that in detail. Now today we will try to discuss and we will try to explain it to you that what is the importance of reproductive health and what do we mean by reproductive health. So let's begin. Reproductive health. First of all, you need to understand that what is the meaning of health. Health मतलब क्या होता है? Health मतलब when the person is physically as well as emotionally and socially fit. Okay, मतलब sometimes what happens, the person is physically fit but उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, negative thoughts चल रहे होते हैं, so the person is considered to be emotionally unhealthy. Or sometimes the person is emotionally healthy, physically healthy but socially he is not healthy or she is not healthy. उसका जो social environment है वो अच्छा नहीं है, मतलब या तो negative लोग भरे हुए हैं या तो cleanliness नहीं है आजू बाजू में, it can be any reason. So health depends upon all the factors. Okay, World Health Organization WHO ने reproductive health को कैसे define किया है? Let us have a look. According to World Health Organization, according to WHO, reproductive health means total well-being in aspects of रिप्रोडक्शन. मतलब हर एक एस्पेक्ट में अगर पर्सन हेल्दी है तो उसको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन डिटरमाइन करते हैं. व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स? द पर्सन हैज़ टू बी इमोशनली हेल्दी, बिहेवियरल चेंजेस और द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन शुड बी हेल्दी, he or she should be socially healthy as well as physically healthy. मतलब पर्सन को हर एक एस्पेक्ट में हैप्पी और फिट रहना है, तभी हम उस पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी डिटरमाइन कर सकते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स व्हेन द पर्सन इज फर्स्ट ऑफ ऑल एबल टू रिप्रोड्यूस. कोई भी इंसान जब रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है तो उस पर्सन को हम रिप्रोडक्टिव पर्सन बोलते हैं. लेकिन वो पर्सन सिर्फ उसके पास स्पर्म्स है या सिर्फ उसके पास ओवरीज हैं इसीलिए वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ऐसा नहीं बोल सकते. उस पर्सन का इमोशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस, सारा स्टेटस मैटर करता है, सारे एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको यहाँ पर यही बताया है, द पर्सन हैज़ टू बी इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली एंड physically healthy, then only that person can be considered as reproductively healthy person. Okay, अब एक सोसाइटी में क्या चीज़ें देखनी चाहिए? A society with people having physically and functionally normal reproductive organs, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आपको कॉमन मेल और फीमेल देखने को मिलेंगे. So a society which have people who have normal or we can say common physical and functional reproductive organs like testes in males and vagina in female or ovaries in female and normal emotional and behavioral interaction, that society or such society is called as reproductively healthy society. मतलब जहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं. जैसे अगर मैं आपको फ्रैंकली कोई टर्म बताऊँ, जैसे ट्रांसजेंडर्स को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये जो किन्नर होते हैं जिनको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं या ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या उनके पास एक्स्ट्रा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फिर वो कोई भगवान उनको कुछ पता नहीं, मतलब सुपरस्टिशन बहुत सारे हैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर. सो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है. ट्रांसजेंडर्स इज टोटली समथिंग रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स. ओके, वो क्रोमोसोमल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. वो सेक्स क्रोमोसोम्स में जब कुछ अबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाती है या एबनॉर्मल पेयरिंग हो जाती है तो द पर्सन बिकम द ट्रांसजेंडर या उसके बॉडी में कुछ हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं. दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. लेकिन जब हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर कॉमन मेल्स और कॉमन फीमेल्स है या जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल मेल्स और नॉर्मल फीमेल्स, तो उस सोसाइटी को जहाँ पर नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल्स हैं और वो लोग इमोशनली और फिजिकली हेल्दी हैं, उस सोसाइटी को हम बोलते हैं फिजिकली रिप्रोडक्टिव सोसाइटी. ओके, या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. टोटल रिप्रोडक्शन हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन इंडिया. अब इंडिया का जो इंडिया में वैसे तो बहुत सारे गोल्स हैं. हमको पॉवर्टी ख़त्म करनी है, मतलब गरीबी ख़त्म करनी है, हमको अपना जीडीपी बढ़ाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाना है, हमको अभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, क्लीनलीनेस स्प्रेड करना है. ऐसे हमारे बहुत सारे गोल्स हैं जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना. क्योंकि आप जानते ही होंगे दैट इंडिया बीइंग
one of the most populated country, it is very important for us to control the population as well as to explain people what is the importance of the population and what is the importance of the reproduction. जब तक आम लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी कि रिप्रोडक्शन कैसे होना चाहिए और उसकी हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट मैटर करती है, तब तक हमारी कंट्री डेवलप नहीं होगी. इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अनडेवलपमेंट इन अवर कंट्री. ओके, इंडिया, बाकी की कंट्रीज़, ऐसे कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने कुछ इनिशिएटिव एक्शन प्लान स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मोटिवेट करने के लिए या अलग अलग जगहों पर अवेयरनेस फैलाने के लिए. कुछ कंट्रीज़ ने प्लान स्टार्ट किए थे, कुछ प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम स्टार्ट किए थे. उनमें से एक कंट्री इंडिया भी थी. सो इंडिया अमंगस्ट द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड was to initiate action plans and programs to improve reproductive health. These programs are covered और they cover wider areas related to reproduction. मतलब जिन जिन एरियाज़ में रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली देखा जाता है या जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन एरियाज़ में इंडिया अपने सोशल प्रोग्राम्स रन करती है. और इन प्रोग्राम्स में क्या किया जाता है, इन प्रोग्राम्स में यंगर जनरेशन को या रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिनकी है, मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन करने के एज में हैं, उनको इम्पॉर्टेंस समझाया जाता है कि क्यों आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को इमोशनली और फिजिकली फिट रखना क्यों ज़रूरी है, और कौन सा एज बेस्ट है रिप्रोडक्शन करने के लिए. कौन से एज में मतलब आप रिप्रोडक्शन करेंगे तो मदर की भी हेल्थ अच्छी होगी और चाइल्ड की भी हेल्थ अच्छी होगी. तो ये सारी चीज़ें समझाना, ये काम होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर. ओके, These programs are currently in operation under the reproductive and child health care programs. मतलब ये जितना भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं या जितना भी प्लान्स बनाते हैं, तो ये हर एक पर्टिकुलर कमिटी को हैंड ओवर किया जाता है. तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी एक्शन प्लान्स आते हैं और जितने भी प्रोग्राम्स या प्रोपोगेंडाज होते हैं, वो सारा का सारा किस बेसिस पर डिपेंडेंट होता है कि कैसे भी करके कंट्री के लोगों को रिप्रोडक्शन और उसकी हेल्थ के रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाना है. ओके, अब क्या क्या गोल्स हैं? 4 हमारे मेन गोल्स हैं जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं और जब हम लोगों तक मैसेज पहुंचाने की बात करते हैं. पहला गोल हमारा क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना. टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट द पीपल दैट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ द फर्स्ट गोल. सेकेंड, टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़. अब क्या होगा कि आपने सिर्फ लोगों को बता दिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और उसको कैसे मेंटेन करना है, लेकिन आप कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई कि बात एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर चली गई. जब आप किसी को कोई मैसेज पहुंचाते हैं तो आपको साथ ही साथ उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो द सेकेंड गोल इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पीपल सो दैट दे कैन एक्चुअली इनकलकेट the messages given to them. Okay, then the third goal is to provide support. They need financial, physical, emotional and all kind of supports. So हमको people को support भी provide करना पड़ता है, mainly motivational support, क्योंकि बहुत सारे लोग पहला step लेने में ही कतराते हैं that how can we initiate this thing to maintain our health. Okay, many people in traditional areas or in remote areas, they feel shy to come ahead to talk about their health itself. So it is very important that we provide them all kinds of support what they need as much as possible from the side of the organization. और फोर्थ गोल क्या है? फोर्थ गोल सबसे इम्पॉर्टेंट है. चेंजेस लाना है हमको. किन चीज़ों में चेंजेस लाना है? टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन रिड्यूसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट. आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ते जा रहा है. इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि उनके स्पर्म्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवम. सो या ओवरीज भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज होने के लिए मतलब दे आर नॉट केपेबल टू फर्टिलाइज. ओके, सो दिस इनफर्टिलिटी रेट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड. नाउ वट एवर इज द रीज़न, टेक्नोलॉजिकल रेडिएशंस कैन बी द रीज़न, एक्स्ट्रा stress can be the reason, over medication can be the reason. So there are a lot many reasons which we need to change. तो सबसे पहला चेंज हमको क्या करना है? इनफर्टिलिटी रेट कम करना है. नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है. इन्फेंट मतलब क्या होता है? पैदाइशी बच्चे, मतलब नवजात शिशु जो हम बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी. इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी और मॉर्टैलिटी मीन्स डेथ.
तो हमको ये जो नवजात शिशु होते हैं उनके डेथ रेट कम करनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर मदर हेल्दी नहीं है और वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसका बच्चा जो पैदा होगा ऑब्वियसली वो भी अनहेल्दी पैदा होगा, तो वो अनहेल्दी बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा और जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो हमको ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज क्या लाना है, हमको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम करना है। मैटरनल मीन्स मदर का डेथ रेट, क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा करते करते माँ मर जाती है। नाउ दैट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज फिर बच्चे का नरिशमेंट प्रॉपरली नहीं होगा और वो लॉन्गर रन तक पूरी फैमिली को डैमेज फेस करना पड़ेगा। सो दीज थ्री थिंग्स वी हैव टू, these are three main indicators which we have to bring change in. Okay, so this was about goals of RCH program. Let's move ahead. All right, so let's discuss that how reproductive and child health care RCH organization tries to follow the goals that they have made. Okay, उनके goals क्या हैं और वो कैसे उसको follow करने की कोशिश करते हैं, let us try to understand. पहला गोल क्या है उनका, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। ओके, क्योंकि स्कूल जो होता है वहाँ पर मेजर अमाउंट का पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पॉपुलेशन होता है। ओके, स्पेशली इन द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ द स्कूल्स। तो स्कूल स्टूडेंट्स को अगर हम सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट से पूरी फैमिली, ऐसे हर एक मेंबर को अवेयरनेस स्प्रेड होगी। ओके, और स्टूडेंट्स खुद सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उनको भी गुड और बैड, हेल्दी और हार्मफुल के बीच का डिफरेंस समझाना ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक अडल्ट इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो educating students in the school by giving them sex education in schools, providing them proper information about sex related aspects. उनके दिमाग में जितने भी sex related aspects आते हैं, sexual intercourse से related question आते हैं, ये पेरेंट्स की और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन क्वेश्चंस को इग्नोर करने के बजाय उनको वो चीज़ें लॉजिकली एक्सप्लेन करें। ओके, जैसे कोई बच्चा जब बचपन में पूछता है कि मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट गॉड हैज़ गिफ्टेड यू, यू कैन एक्सप्लेन देम इट इन अ मोर लॉजिकल मैनर। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू टू एक्सप्लेन देम द जेनेटिक बेसिस ऑफ दैट कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, बट यू हैव टू मेक योर चाइल्ड अवेयर अबाउट द साइंटिफिक थिंग्स दैट इज गोइंग एंड दैट इज टेकिंग प्लेस इन एन इंडिविजुअल्स बॉडी। तभी वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर चीज़ों को लॉजिकली सोचेगा। ऑलराइट, सो ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर आंसर्स व्हेन अ चाइल्ड आस्क्स यू सच क्वेश्चंस. So providing them proper information about all the sex related aspects, educating them about the safe and hygienic sexual practices, that why it is important to keep all your genital organs clean and healthy. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में उनको बताना ज़रूरी है, लाइक एड्स एंड अदर डिफरेंट डिजीज़ लाइक सिफिलिस. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अडोलेसेंस एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जब बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर एंटरिंग देयर टीन एज, एट दैट टाइम द हार्मोनल changes takes place in their body at an extreme level. So at that age it is very important that you communicate with your child, you communicate with your student and explain them all the aspects which are related to their growth, their mental growth, their physical growth as well as their sexual growth, to explain them that why it is important to keep your reproductive health proper. Okay, then next point is गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस शुड यूज़ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया. ऑडियो विजुअल क्या होता है, जैसे रेडियो FM हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट का सोर्स हो गया. सो दीज आर ऑडियो विजुअल सोर्स. एंड प्रिंट मीडिया में योर मैगजीन्स, योर न्यूज़ लेटर्स, एवरीथिंग कम्स इन प्रिंट मीडिया. तो अगर ये दो सोर्सेज का हम यूज़ करें, मतलब गवर्नमेंट और NGOs जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इन दो मीडियाज़ का यूज़ करें अपनी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, तो उनके मैसेजेस बहुत ही लार्जर क्राउड तक पहुँचेगा. ऑलराइट, ओके. एजुकेटिंग द यंगर जनरेशन अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स. जो सेक्सुअली एक्टिव जनरेशन है, मतलब जो अभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं, द अडोलेसेंट्स, उनको बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं दैट ऑल सेक्सुअली एक्टिव adolescent is doing sexual intercourse. सारे बच्चे sexual intercourse कर रहे हैं ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, but it is our responsibility to tell them that what are the precautions that you need to take to maintain your sexual health care as well as your partner's sexual health care, because it can affect you on a longer run if you ignore the
मेजर्स दैट वी आर एक्सप्लेनिंग टू यू, ओके. तो उनको बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड. द पर्सन, द फैमिली, द स्टूडेंट, एवरीबडी शुड बी अवेयर कि जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर फैमिली में है, तो उसकी प्रीनेटल केयर कैसी करनी चाहिए. प्रीनेटल केयर मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले मदर को क्या नरिशमेंट लगता है, उसको क्या सपोर्ट लगता है इमोशनली, फिजिकली, सोशली, वो सारी चीज़ें अवेयरनेस उनके पास होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए. दे शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट्स एज वेल एज व्हाट आर द पोस्ट नेटल प्रिकॉशंस दे नीड टू टेक. मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद मदर और चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, इसके बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक सोसाइटी में करना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल राइट. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. साथ ही साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for this younger generation and for the modern lifestyle to explain each and every woman that why it is important to feed your child your own breast milk, okay, because it contains a lot of protein, antibodies and everything. So other than feeding them something from external source, it is important that you feed your child your breast milk at the initial days after his birth, okay. Then the next points about the goals of RCH are by developing awareness about overpopulation. Population जब बढ़ जाता है, when there is a lot of population in the country, it is very important that you explain your child that what are the side effects, what are the problems that you are going to suffer because of this uncontrolled population, okay, and what are those problems or what are those evils that you are going to face. Evils like sexual abuse, human trafficking, organ harvesting, and many such problems are faced in countries like India where it is uncontrollably populated, okay, and other such crimes. तो अगर population बढ़ता जाएगा तो crimes नहीं रुकने वाले हैं. So it is very important to organizations, to schools, to parents, to families, to teachers, to make everyone understand that why it is important to control the population, not only for financial good sake but also for the health care of the person, okay. From that concern also it is important to make our child understand that what are the major issues that they are going to face because of uncontrolled population. The next point is awareness about statutory ban on एमनियोसिंथेसिस. अब ये एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, हमने हमारे इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है तो एमनियोटिक कैविटी बनती है. ये जो एमनियोटिक कैविटी होती है, यहाँ पर आपका जो एम्ब्रियो है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, दिस फ्लूइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट. ये एम्ब्रियो और एमनियोटिक फ्लूइड से हम एम्ब्रियो का फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं कि जो बेबी है, जो फीटस है, वो मेल है कि वो फीमेल है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही क्रोमोजोमल सिनेप्सिस हो जाता है. मतलब जो क्रोमोजोमल कॉम्बिनेशन होना होता है वो हो जाता है. दैट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ. कुछ 10th या 15th डे पर ये हो जाता है व्हेन द फीटस इज डेवलपिंग, ओके, व्हेन द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग. तो अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालेंगे, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब हम एमनियोटिक फ्लूइड इंजेक्ट करके बाहर निकालते हैं तो उस फ्लूइड से ही पता चल जाता है कि वेदर द चाइल्ड दैट इज गोइंग टू बी बॉर्न इज मेल और फीमेल. मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है. नाउ दिस इज़ बैन इन इंडिया. इंडिया में ये बैन किया गया है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फीटल डेथ्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फीटल मोर्टेलिटी रेट ऑब्जर्व किया जाता है, स्पेशली ऑफ फीमेल चाइल्ड, फीमेल फीटिसाइड. सो इट इज़ लीगली बैंड इन इंडिया, बट देर आर मेनी organizations or you can say pathological laboratories and gynecologists who still perform this technique to help people to know about the sex of the child, okay. So it is banned in country and that message should be spreaded by the organization, all right. Then the organization should also spread awareness about child immunization programs. Government हर साल बहुत सारे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स करती हैं, जिसके वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनको अपकमिंग वायरसेस या अपकमिंग इन्फेक्शंस की वजह से उनकी हेल्थ पर कुछ असर ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन स्कीम निकालती रहती है. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज पोलियो एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन्स विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू ईच एंड एवरी लोकेलिटी सो दैट पीपल टेक दीज इम्यूनाइजेशंस एंड दे रिमेन हेल्दी. सो लोगों को इम्यूनाइजेशन स्कीम्स के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटर health of their child in future, okay. And the last point is educating couples, young couples, to reduce mortality rate of newborns, because
कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अगर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में देखा जाता है कि उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराया, लेकिन बेबी के पैदा होने के बाद अगर वो बेबी फिजिकली चैलेंज्ड है या लड़की है और फॉर एनी XYZ रीज़न वो उसको मार देते हैं या वो बचाते नहीं हैं। सो ये मॉर्टैलिटी रेट कम करना है, ये हमको कपल्स को बताना चाहिए कि क्यों मॉर्टैलिटी रेट कम करना है, क्योंकि बार बार प्रेगनेंसी की वजह से मदर के हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। फाइनेंशियल, इमोशनल, बहुत सारा ट्रॉमा फेस करती है एक प्रेग्नेंट वुमन। ओके, सो एजुकेटिंग कपल्स टू रिड्यूस मॉर्टैलिटी रेट ऑफ न्यूबॉर्न्स एंड मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट। मैटरनल की हेल्थ केयर भी इंपॉर्टेंट है और मदर का भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, तो ये भी हमको रिड्यूस करना है। ये हमने इनिशियली ही देखा कि दीज आर द चेंजेस दैट वी नीड टू ब्रिंग इन आवर सोसाइटी। ओके, सो दीज आर द गोल्स, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर पॉपुलेशन था 350 मिलियंस। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जब 2000 ईयर का सेंसस निकाला गया तो पॉपुलेशन पहुंच चुका था 1 बिलियन तक। फिर 2011 में जब सेंसस हुआ तो तब हमने देखा दैट द पॉपुलेशन हैड रीच्ड 1.2 बिलियंस एंड नाउ इन 2020 द अप्रॉक्सीमेट सेंसस टेल्स अस दैट द अप्रॉक्सीमेट काउंट ऑफ पॉपुलेशन हैज रीच्ड टू अबाउट 1.35 बिलियंस. Now this is the extreme situation of uncontrolled population, and this overpopulation is leading to a lot of criminal and psychological activities. Like it is affecting people's lives on a greater manner. Okay, so government is taking to improve this, the government is taking a lot many alternative steps to make people aware, to make people understand that why it is important to control the population, and that is why government is releasing many projects, many programs explaining people that why it is important to use birth control measures so that to keep your family short. Okay, and the government firmly believes कि जितनी छोटी फैमिली रहेगी उतना ज़्यादा कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का ग्रोथ होगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सिटी या एक पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट से कंट्री डेवलप नहीं होगी। जब तक कंट्री का इंडिविजुअल मेंबर कंट्री की ग्रोथ में सपोर्ट नहीं करेगा तब तक एंटायर कंट्री वोंट डेवलप, एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली इज small family. And to maintain that small family, people should be aware about the different birth control measures that are released by the government organizations. Okay, so I hope that you understood this thing. All right, okay, all right dear students, so I hope that today's topic was pretty much informative to you. You can use this information to spread it amongst your other friends and other siblings, your younger siblings or your elder siblings. You can educate your neighborhood about the things that you studied today. Okay, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप और हम ही सोसाइटी बनाते हैं और आप और हमसे ही ये मैसेजेस आगे पास ऑन होंगे। तो ट्राई टू बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ट्राई टू बी द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और सिर्फ टेक्सचुअल नहीं बट उसका एक्चुअल मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स अदर देन द टॉपिक, please feel free to ask it in our comment section. We will be more than obliged to help you to answer your questions. If you liked our video, then please do not forget to click on the like button. Let us know your views in our comment section, and please share these videos with your friends as much as possible. If you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon.